This video contains some of the best numericals that can be asked to you in your competitive exams like JEE Mains and NEET. And this is also important for the students who are preparing for the CBSE board exam this year, 2021 and 22. Okay, and these numericals are based on the chapter solution. As you know, this is a very interesting and important chapter. So let's discuss a few numericals with very interesting solutions. ठीक है, तो start करते हैं. The first question is C. Now, what is the first question? The first question is given the freezing point in centigrade. You have to calculate the freezing point in centigrade of the solution. आपको इसका एक सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है इन डिग्री सेंटीग्रेड. सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. और इसको हम, अगर आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है, देन यू हैव नोन वेरी वेल दैट द सिंबल फॉर दिस इज freezing point for the solution is TF. You have to calculate this. You have to calculate in degree centigrade. You have to calculate करना है degree centigrade में. What is given? It is given that the solute, यहाँ पे solute क्या है? This complex is a solute. This is a coordination complex and ये solute है. और उस solute का what is the mass given? What is the mass is 0.1 and you know solute के mass को हम W2 represent करते हैं. This is 0.1 gram and its molecular weight is given 329 gram. This is given in the solution. ठीक है. Now what is the solvent? सॉल्यूशन के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट हमने आइडेंटिफाई कर दिया. सॉल्यूट को हम हमेशा 2 नोटिफाई करते हैं और सॉल्यूट को हमेशा 1 नोटिफाई करते हैं. इसीलिए W2 M2 है, इसमें हम W1 ले लेंगे. W1 इज गिवन 100 ग्राम. ठीक है. एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. It is 18 gram. And what is the Kf value? Kf value is your molar depression constant and it is given 1.86 into Kelvin kg per mole. This is given. ठीक है, ये आपको given है. By using this data you have to calculate. So according to the colligative property and depression in freezing point, you know what is the change in the freezing point? Delta TF is equal to TF0 minus TF is equal to KF into molality. Molality of what? Molality of this solute. Solute का molality लेते हैं. Molality किसका लेते हैं? Solute का लेते हैं. ये तुम आपका नॉर्मल इक्वेशन होता है. लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइजेबल होता है, इफ दिस इलेक्ट्रोलाइट दिस सॉल्यूट इज आयनाइजेबल, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाता है? TF0 minus TF is equal to I into KF into I, where I is your Ventov factor. ये क्या है? I is your Ventov factor. ठीक है, this is your Ventov factor. ठीक है, यहाँ पे आपको Ventov factor यूज करना पड़ेगा because this electrolyte is ionizable. ये ionizable हो सकता है. ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं और हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, TF कैलकुलेट करना है. और क्योंकि KF का वैल्यू इज गिवन इन केल्विन, केल्विन में गिवन है, दिस इज केल्विन kg पर मोल, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे वाटर है. एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा आपका इन केल्विन? इट इज 273.15 minus TF that we have to calculate is equal to I. कितना हो जाएगा? I यहाँ पे कितना होगा Ventov factor में? आप यहाँ पे देख लो I कैसे कैलकुलेट करते हैं. It is the number of ions. I is equal to number of ions produced by your electrolyte, and here the electrolyte is K3FeCN whole 6. ठीक है, तो अगर आप इसको आयनाइज करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा? 3K प्लस प्लस FeCN6 3 माइनस, ये आयन्स रिलीज होंगे. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए? इसका 1 आयन और इसका 3 आयन. सो व्हाट विल बी द I वैल्यू? I इज इक्वल टू 4.
वेंटो फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 4. सो लेट्स मल्टीप्लाई 4 into Kf is given you 1.86 into molality is equal to क्या होता है W2 divided by molecular weight into 1000 divided by W1. This is the molality of the solute. ठीक है, तो इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे कैलकुलेशन तो 273.15 minus TF is equal to 4 into 1.86 into W2 is given 0.1. Its molecular weight is 329 and this is 1000 divided by 100. ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अब अगर आप इस साइड पे कैलकुलेट करेंगे तो दिस होल वैल्यू विल कम आउट 273.15 minus TF is equal to this value is 0.02261 Kelvin. 61 Kelvin, क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, दिस इज योर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ केल्विन, केल्विन में दिया है, तो ये आंसर भी यहाँ पे केल्विन में आएगा. सो नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ TF. TF का वैल्यू कितना आ जाएगा 273.15 माइनस 0.02261 Kelvin and this value will come out 273.127 Kelvin. ठीक है, this is the answer in the terms of Kelvin. लेकिन हमें क्या चाहिए, we need the value in terms of डिग्री सेंटीग्रेड. हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना है. डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे 273 केल्विन 0.127 Kelvin minus 273.15 and this value will come out 0.023 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे then we can represent this value 2.3. this will come in negative value. ठीक है ना, this will come at negative value and this one is minus 2.3 into 10 to the power minus 2 in degree centigrade. ठीक है, समझ में आ गया. एंड यहाँ पे आपने माइनस किया है 273.127 से 273.15. द वैल्यू विल कम नेगेटिव. ऑफ कोर्स ये बात है कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो जो सॉल्यूशन होगा और उसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो 0 डिग्री से नीचे आएगा तो इट्स मस्ट हैव ए नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू होगा. ओके, एंड उस नेगेटिव वैल्यू को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सो द आंसर इज योर माइनस 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये ए वाला आपका ऑप्शन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जो सॉल्यूशन से पूछे जाते हैं, वहां पे अगर आपका किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट है एंड इट इज आयनाइजेबल, अगर वो आयनाइजेबल है तो यहाँ पे वेंटर फैक्टर को इग्नोर मत करिएगा. ठीक है, अगर वेंटर फैक्टर आप अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे आई अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका आंसर गलत आएगा. ठीक है, तो कहीं पे भी आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आयनाइजेबल है, एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव आयनाइजेशन हो रहा है उसमें, तो वहां पे आपको वेंटर फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this one. This is also based on a depression in freezing point question and this question is already been asked in JEE Mains 2020. ठीक है, how much amount of NaCl, let's do the solution. How much amount of NaCl should be, यहाँ पे solute क्या है, what is the solute. मैंने आपको हमेशा कहा है solution के question solve करते time you have to first identify what is your solute and what is your solvent and what datas are given. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इज NaCl. ठीक है, और इसको हम हमेशा 2 नोटिफाई करते हैं और सॉल्वेंट को 1 नोटिफाई करते हैं. तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, M2 विल बी 58.5 और इसका मास हमें कैलकुलेट करना है, W2 हमें कैलकुलेट करना है. सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, बिकॉज सॉल्वेंट इज योर वाटर और सॉल्यूट है आपका यहाँ पे NaCl. ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18 and weight is given 600 gram. It is given 600 gram. Okay, and there is a decrease in the freezing point. अगर आपका freezing point, decrease in freezing point is given you, decrease in freezing point आपको दिया है minus
0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा इनिशियल प्योर सॉल्वेंट का, इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपका जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका -2 डिग्री है, मतलब डिक्रीज हो गया, इट इज डिक्रीज टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिक्रीज हो गया है। सो व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, व्हाट इज द चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज कितना हो जाएगा, 0.2 ही रहेगा। ठीक है, और चेंज को आप चाहे केल्विन में कन्वर्ट करिए या फिर सेंटीग्रेड में करिए तो जो चेंज इन होता है चेंज तो सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को 0.2 केल्विन ले लेते हैं। ठीक है, चाहे आप सेंटीग्रेड में दोनों वैल्यूज को लीजिए, अगर आप यहाँ पे सेंटीग्रेड में लेंगे तब भी आपका ये चेंज 0.2 ही रहेगा, अगर आप इसको केल्विन में लेंगे तभी चेंज तो आपका 0.2 ही रहेगा। तो आप उसको 0.2 केल्विन भी लिख सकते हैं और सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे केल्विन लिखूंगी क्योंकि फ्यूचर में जो कैलकुलेशंस हैं वहां पे आपका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है द KF इज गिवन 2 केल्विन kg पर मोल, यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने को इजी करने के लिए हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन में ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट स्टेप इज let's do the calculation, we have to calculate the value, this is the weight of the solute। तो हम इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्योंकि the electrolyte is NaCl and NaCl can be ionizable, आपको पता है इसको आयनाइज कर सकते हैं, it can ionize into Na plus and Cl minus। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है कि जो दो आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। So what is the Venter factor here, it is 2, Venter factor is 2। So what is the formula is the calculation, delta TF is equal to I Venter factor into KF into molality, molality आ जाएगा। ठीक है, okay, now put the value, this is your 0.2 Kelvin, now this is I is equal to 2, KF is equal to 2 and molality I can write W2 divided by M2 into 1000 divided by W1। Already I have mentioned you what is W2, M2, M1 क्या है। इसको अगर हम फिर से एक्सप्लेन करें, 0.2 केल्विन इज इक्वल टू 4, W2 हमें कैलकुलेट करना है, M2 इज गिवन 58.5 into 1000 डिवाइडेड बाय 600 ग्राम। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड 0.2 केल्विन इज इक्वल टू W2 इंटू अगर आप इस पूरे फिगर को अगर कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम आउट 0.1139। okay, so what is the value of W2, W2 will be 0.2 और ये किस में आएगा, केल्विन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन केल्विन। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1139 एंड दिस मास विल, NaCl का मास कितना आ जाएगा, इट इज 1.75 ग्राम, this is 1.75 gram। okay, so what is the mass you need for the electrolyte, it is 1.75 gram। अगर आप solution बनाते हैं in 600 gram of water then there will be a decrease in the freezing point about -0.2 centigrade। okay, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। so the next one is, let's go to the next one। this is one of the question that has been asked in your JEE mains exam। ठीक है, the question is saying the mole fraction of glucose। तो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं what is the solute here, the solute is glucose, ग्लूकोज है आपका सॉल्यूट। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये आपका सॉल्यूट है। एंड आपका इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन X2 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, and this is an aqueous solution, therefore what is the solvent, it is very clear, solvent will be your water। ठीक है, जिसका कि आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें दो ही कंपोनेंट्स होंगे, दो ही कंपोनेंट्स होंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस में सिर्फ सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट्स, एक का अगर 0.1 है तो दूसरे का कितना होगा आपको पता है, x1 plus x2 will be 1। तो अगर x2 is 0.1 है then x1 will be
0.9. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर, दैट इज योर सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, ओके फाइन। तो उसने पूछा है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द, यहाँ पे उसने क्या पूछा है, मास परसेंटेज, बाइनरी सॉल्व, मास परसेंटेज ऑफ इट टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, हमें यहाँ पे मास परसेंटेज पूछा है, किसका मास परसेंटेज पूछा है, वी हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, हमें यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज मास ऑफ water plus mass of your glucose, C6H12O6 into 100. This will be your formula for the calculation of mass percentage. चाहे आप वाटर का निकालो चाहे आप ग्लूकोज का निकालो, क्या, ठीक है, मैं यहाँ पे ग्लूकोज का निकाल रही हूँ, ठीक है, सॉरी वाटर का निकाल रही हूँ, यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ वाटर चाहिए एंड यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज चाहिए, लेकिन हमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन इज 1 is 0.1 एंड x1 is 0.9। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करूंगी, अगर आपको पता है व्हाट इज योर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल divided by total number of moles of the component, and x2 will be similarly number of moles of second component divided by n1 plus n2। तो अगर आप रेशियो लोगे x1 by x2 का, मोल फ्रैक्शन का रेशियो लोगे, that will be equal to the ratio of n1 by n2। तो यहाँ पे क्या रेशियो है इसका, it is 0.1 divided by 0.9। So this ratio is equal to the number of moles of ratio of both the components। तो मैं n1 and n2 को क्या ले सकती हूँ, उनका रेशियो को 1 divided by 9 ले सकती हूँ, 1 divided by 9 ले सकती हूँ। इसका मतलब अगर ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स इज 1 मोल है, अगर इसका 1 मोल है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर विल बी 9 मोल्स, ठीक है। यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उनका जो रेशियो होगा दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ देयर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज अगर 1 मोल हुआ तो आपका सॉल्वेंट वाटर कितना हो जाएगा, 9 मोल, एंड नंबर ऑफ मोल्स पता है, एंड यू नो द मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है m2 is equal to 180 and water का molecular mass होता है 18। So it is now very clear what is the mass percentage of water, mass of water क्या होगा, you know the number of moles and you know the molecular mass। So mass is equal to क्या हो जाएगा, given mass is equal to number of moles into molecular mass, number of moles कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, so it is the number of moles of water into molecular mass of water हो जाएगा, divided by number of moles of water into molecular mass of water plus number of moles of glucose, ठीक है, into molecular mass of glucose। मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 9 है, वाटर का कितना है, मॉलिक्यूलर मास 18 है। सिमिलरली हियर 9 into 18 प्लस यहाँ पे 1 into 180 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज। तो ये आपका हो जाएगा, दिस वैल्यू विल कम आउट 162 एंड यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 रहेगा, इंटू 100, दिस विल बी 162 डिवाइडेड बाय 162 प्लस 180। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे देन दिस वैल्यू विल कम आउट इंटू 100, अगर आप करेंगे दिस वैल्यू विल कम आउट 47.36%, ठीक है। ये आपका वाटर का परसेंटेज हो गया। अगर ये वाटर का परसेंटेज हो गया तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हो, ग्लूकोज का परसेंटेज निकलेगा 100 माइनस 47.36, जो भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगा वो आपका ग्लूकोज का परसेंटेज होगा। सो यहाँ पे ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज गिवन, दैट इज 0.1 एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू इंटरप्रेट, वी हैव टू कोरिलेट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं, जहाँ पे डेटा बहुत गिवन डेटा जो होता है बहुत कम होता है और उसमें से आपको सारे डेटा को इंटरप्रेट करना होता है। जहाँ पे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है
तो वहां पे आपका मॉलिकुलर मास जो है, उनका वेट का जो रेशियो है, एवरीथिंग यू हैव टू कोरिलेट, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। ठीक है, ओके, समझ में आया? सो दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चन, और इसका आंसर आएगा 47.36%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर next question is also a very interesting question, and it is also asked in the previous year question, and this is very important। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के मेंस एग्जाम में, या फिर मैं तो ये कहती हूँ कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज डे बाय डे द एजुकेशन सिस्टम्स आर चेंजिंग, यू नीड टू डू द प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, और हो सकता है क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, हो सकता है कि 2 टर्म्स में एग्जाम होने वाले हैं, तो हो सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ओके, सो योर प्रिपरेशन शुड बी कंप्लीट। ओके, so this question is here in the screen, that is 6.023 into 10 to the power 22 molecules are present in 10 gram of a substance, there is a substance X। ठीक है, and there are 6.023 into 10 to the power 22 molecules are present in 10 gram। 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ओके, सो इसका मतलब 10 ग्राम में 6.023 into 10 to the power 22 molecules हैं। We have to calculate the molarity of the solution, हमें molarity calculate करना है। We need to calculate molarity where its mass is given। ठीक है, mass is given 5 gram and in volume of 2 liter solution। वॉल्यूम क्या दिया है? 2 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, मास दिया हुआ है एंड 2 लीटर सोल्यूशन दिया गया है। तो हमारी मोलरिटी हम कैसे निकालते हैं? आपको पता है व्हाट इज मोलरिटी? टू फाइंड आउट मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, नीचे 2 लीटर इज गिवन डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, तब जाके मोलरिटी डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस डेटा को यूज करेंगे। हमारे पास 5 ग्राम गिवन सब्सटेंस है। ठीक है, अगर मॉलिकुलर मास पता होता तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते, लेकिन यहाँ मॉलिकुलर मास ना देके उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। अब इससे कैसे कैलकुलेट होगा? हाउ यू विल कैलकुलेट? अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं 10 ग्राम में, ठीक है, 6.023 into 10 to the power 22 molecules are present in 10 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, अगर इतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? बाय गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस। अगर 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड आई हैव 5 ग्राम, आई हैव ओनली 5 ग्राम, तो 5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएंगे? ठीक है, ये हमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6.023 into 10 to the power 23 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम 1 मोल कहते हैं। इट इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, तो अगर आपका 6.023 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स हैं, देन द नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 1 divided by 6.023 into 10 to the power 23 into 6.023 into 10 to the power 22। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 10 to the power -1, तो 0.1 मोल हो जाएगा। 0.1 मोल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है 0.1। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम। तो 10 ग्राम का सब्सटेंस अगर आपका है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, 10 ग्राम अगर 0.1 मोल हुआ, तो आपका गिवन वैल्यू कितना है? वी हैव गिवन 5 ग्राम। 5 ग्राम विल बी हाफ ऑफ दिस 0.1 डिवाइडेड बाय 2 and this will be 0.05 moles। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया आपको। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 0.05 मोल्स डिवाइडेड बाय 2 लीटर। ठीक है, तो 2 लीटर हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5
into 10 to the power -2, ये आंसर आएगा। दिस इज योर मोलरिटी, दिस इज योर मोलरिटी, बट हमें इसको 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में रखना है, 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में रखना है, तो ये हो जाएगा 25 into 10 टू द पावर -3 मोलर। ये आपका आंसर है, यहाँ पे आ जाएगा 25, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि नॉर्मल मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया था, बट द मोलरिटी हैव टू कैलकुलेट बाय डिफरेंट वे, कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम को उसने कोरिलेट किया था। ना तो उसने सब्सटेंस बताया, ना उसने मॉलिक्यूलर मास दिया, बट उसने इस तरह से कोरिलेट कर दिया कि इतने मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम एंड यू हैव यूज्ड 5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 2 लीटर, तो उसका मोलरिटी कैसे करेंगे। So this way we can calculate, और बहुत सारे questions हैं that I want to share with you. In my upcoming videos I will definitely come with other questions और interesting questions लेके आऊंगी। प्लीज आप वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो इसकी जो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपने अलग वीडियो में डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।